everyone, welcome to Chemical Serendipity. Today we'll start with the coordination chemistry that I had already told you that I will start with the coordination chemistry of inorganic, right? So before starting today's video, I have two announcements to make. One announcement is for those students who are planning to have their PhD or any kind of internship in Germany. So there is a scholarship. I'm going to talk about that scholarship. And the second most important announcement is for those students who are preparing for GATE 2021. And in this particular announcement, there is a big news for those students who are in BSc final year or the student who are in masters, MSc first or MSc second. So that I'll make at the end of the video. Before that, we will start with our topic, that is inorganic chemistry. So the very first question is that why this topic is so much important, right? So the importance is basically because of the colors that you all are wearing, like red, blue, green, that I am wearing, right? Because of the colors, because all these colors are consist of coordination complexes. All right, like to dye the fabric that we are wearing, right? There are lots of variety of coordination complexes that are being used. For example, as you can see over here, so this is a coordination complex of the metal chromium, which is forming a coordinate bond with this azo moiety. Here also, azo moiety is making a coordinate bond with the chromium. This is a type of a colorant. And the second type widely used is the phthalocyanine. In phthalocyanine, we have copper, and we have coordinate bond with these nitrogen of this benzene fused pyrrole. Alright, so that is why this is called as chemistry of colors. And not only this is one of the applications. There are huge number of applications of your coordination chemistry. So but I think these big structures are like not a good idea to start the coordination chemistry. So I think we'll start with the basic one, that what exactly is the coordination chemistry. So let us start. So coordination chemistry is all about two things. Okay, one is the metal and another is the ligand. कैसे? तो देखो, एक मेटल होगा, एक लिगेंड होगा और दोनों के बीच में एक बॉन्ड होगा. तो यही सब है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में. ओके, तो बात करते हैं कि भाई ये बॉन्ड क्या है, ये लिगेंड कैसा है, ये मेटल कैसी है. तो पहले बात कर ले बॉन्ड के बारे में. ओके, तो देखो बॉन्ड बहुत तरह के हैं तुम्हारी केमिस्ट्री में. ओके, और बहुत तरह के बॉन्ड हमारी लाइफ में भी हैं. बहुत सारे बॉन्ड हम शेयर करते हैं. जैसे एक बॉन्ड होता है जो तुम अपनी मदर के साथ शेयर करते हो, जिसमें जितना भी लव, राइट, और सेक्रीफाइस सब कुछ आपकी मदर का आपके लिए होता है, राइट. जैसे आप सब लोग बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट. तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके जब वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे और एकदम 7वें आसमान पे पहुंच के अपनी मम्मा को कॉल करेंगे दैट आई डिड इट, आई हैड डन इट, राइट. So you will be so much happy and your mother have no idea about what exactly is this exam about and what you are going to do after exam, what is the advantage of this exam, what you have achieved. But she will become so happy, right? She will become happier than you guys, right? So that is the unconditional bond that you guys or we all share with our mothers. Okay. There is another kind of a bond that we used to share with our siblings, that brother and sister, right, bond. In that particular bond क्या होता है कि जो भी आप अगर किसी को देते भी हो, जैसे अच्छा कि आप बहन को बोल रहे हो कि मुझे ड्रेस चाहिए कॉलेज के लिए, है ना, तो वो बोलेगी हाँ ठीक है एक दिन डाल ले बाकी वापस कर दो. ऐसा नहीं कि हाँ तू ले जा, ऐसा नहीं होता, राइट. तो देर इज़ अ शेयरिंग, बट दैट शेयरिंग आप जो बॉन्ड उसके साथ कर रहे हो, जो वो बॉन्ड है उसमें ऐसा नहीं है कि हाँ कंप्लीट आप दे देते हो अपना स्टफ. All right, so this is a type of a bond. So why I am talking about these bonds, because whatever bond you used to study in chemistry, they all are like this only. For example, let us say A and B. Okay, the bond where the electron we are talking about. Okay, अच्छा bond बनाने के लिए minimum 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, right? अब अगर वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही स्पीशी दे तो वो उसको आप क्या बोल देते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है,
मतलब ममा और आपका वाला बॉन्ड, ये क्या हो गया तुम्हारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जब दोनों ही इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, एक ही स्पीशीज से आ रहे हैं। अच्छा, एक बॉन्ड हो गया जहां पे क्या हो, बॉन्ड बनाने के लिए जहां पर एक इलेक्ट्रॉन एक से आए, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे से आए, लेकिन वो दे नहीं रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को, बस क्या है, शेयरिंग है। इस तरह के बॉन्ड को क्या बोल देते हो, कोवलेंट बॉन्ड, मतलब भाई बहन। अच्छा, एक और बॉन्ड है, क्या, कौन सा बॉन्ड, जिसमें ए हो, बी कोई स्पीशी है, ए कोई स्पीशी है, और बॉन्ड जो बन रहा है उसमें क्या हो रहा है कि ऐसे ही कुछ हो रहा है जैसा ऊपर दिख रहा था, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है, बट उसमें क्या हो रहा है आपका, देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर इज नॉट ओनली शेयरिंग बट देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह के बॉन्ड को आप क्या बोल देते हो, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये, अच्छा, अब इन दोनों को, अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो पता नहीं चलेगा भी कौन सा कोवलेंट है, कौन सा तुम्हारा क्या है, आयनिक बॉन्ड है। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस, इन कोवलेंट बॉन्ड देयर इज अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज नॉट लाइक देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट इन योर आयनिक बॉन्ड देयर इज अ कंप्लीट डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म बॉन्ड, देन it will acquire a partial plus and partial minus sign. So this is a kind of, there will be a kind of electrostatic interaction between this. So this is called ionic bond. So this is the bond we are talking about, coordinate bond. That is why the chemistry is also, chemistry we are saying is your coordination chemistry. ठीक हो गया। अभी इन दोनों के बीच में मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डोनेशन कौन कर रहा है, लिगेंड किसको कर रहा है, मेटल को। अब देखो, कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ना मेटल की एक्सेप्ट करने के लिए और लिगेंड की देने के लिए, तो किस तरह के मेटल और किस तरह के लिगेंड, तो वो पढ़ते हैं। तो देखो, जो लिगेंड है ना, वो कैसे होने चाहिए भाई, रिच होने चाहिए, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन पेयर देना है। तो ऐसे होने चाहिए जिनके पास नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो ऐसे लिगेंड कौन से होते हैं, या तो वो न्यूट्रल हो, जैसे वाटर, तो उसके पास है इलेक्ट्रॉन पेयर नॉन बॉन्डिंग डोनेट करने के लिए, जैसे एमोनिया, ठीक है। और एक होंगे आपके एनायनिक, एनायनिक जैसे Cl नेगेटिव, उसके पास भी है नॉन बॉन्डिंग, जैसे Cn नेगेटिव, उसके पास भी है। तो ये हो गए न्यूट्रल, और ये हो गए न्यूट्रल, ये हो गया एनायनिक। तो इस तरह के कुछ लिगेंड होने चाहिए जो, जिनके पास the ligand who must have a pair of non-bonding electron to give to the metal to form the coordinate bond. All right. और मेटल कैसी होनी चाहिए है, मेटल ऐसी होनी चाहिए जिसके पास क्या हो, वेकेंट और बाइटल्स हो, स्पेस हो, मतलब लेने के लिए कुछ, राइट। So the metal must have the vacant orbitals and the ligand must be the donor ligands who must have a pair of non-bonding electron to give to the metal. So this is all about the metal and about the ligand. Okay. तो मुझे एक बात बताना, फिर तुमने ऐसा कुछ देखा होगा कभी, मेटल बॉन्ड कार्बन, मान लो कोई लिगेंड है जो कार्बन, जो तुम्हारा जो है वो कार्बन से, जो कार्बन है वो तुम्हारा यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कुछ MC बॉन्ड ऐसा कुछ बना रहा है, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। ऐसा बॉन्ड बहुत ज़्यादा देखा है हमने भाई, कहाँ पे, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में, राइट। अच्छा, एक ऐसा बॉन्ड जहाँ पे मेटल हो और जैसे नाइट्रोजन हो, ऐसा कुछ बॉन्ड बहुत ज़्यादा देखा हो तुमने बायोलॉजी में, कहाँ देखा है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कौन सा, हीमोग्लोबिन नाइट्रोजन के साथ, फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन किसके साथ, आयरन का नाइट्रोजन के साथ देखते हो, ठीक है। क्लोरोफिल मैग्नीशियम का नाइट्रोजन के साथ, फिर विटामिन B12 कोबाल्ट का, ये सारे के सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं।
तो देखो सोच के देखो, तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स तुम्हारी ऑर्गेनोमेटालिक्स को भी कवर करता है, तुम्हारी बायो इनऑर्गेनिक को भी कवर करता है. That is why this is very much important, because it covers a broad area of inorganic chemistry. All right. Now in order to understand what is this kind of bonding and what is the structure, what is the bonding, how it is exactly happening, Mr. Werner has started the story. Okay, so let's talk about that. देखो, वर्नर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1893 में एक थ्योरी दिया. उस थ्योरी में उन्होंने स्टडी किया अबाउट दीज कॉम्प्लेक्सेस, अबाउट द बॉन्डिंग, राइट. तो उन्होंने देखा कि क्या क्या हो रहा है, और उस ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड उन्होंने एक थ्योरी दिया, पोस्टुलेट्स दिए. और वो थ्योरी इतनी ज़्यादा, अब ऑब्वियसली एक इंसान इतनी इम्पॉर्टेंट फील्ड को स्टार्ट कर रहा है, ही वॉज लाइक ही इज़ नोन एज अ फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. सो यू कैन से दैट हाउ द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लीड्स टू OMC ऑल्सो, टू बायो इनऑर्गेनिक ऑल्सो. सो ऑब्वियसली काम तो बहुत बड़ा किया है. सो वर्नर 1893 में उन्होंने थ्योरी जो ये दिया है, उनको उसका नोबेल प्राइज़ मिला 1913 में. एंड यू मस्ट बी वेरी मच हैप्पी, because this was the first Nobel Prize in inorganic chemistry. This was the first Nobel Prize in inorganic chemistry, and after that it took 60 years to get Nobel Prize. That was taken by Fisher and Wilkinson for their work on ferrocene. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात करें, एक बहुत फैसिनेटिंग फैक्ट. ये 1893 में थ्योरी दिए और इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ 1897 में. है ना अमेजिंग बात. दिस इज द पावर ऑफ इमेजिनेशन. ऑलराइट, सो लेट्स. तो ये हो गया कि ये काम वर्नर ने किया 1913 में. ये काम इतना इम्पॉर्टेंट था कि उनको नोबेल प्राइज़ मिला. अब ये काम में हुआ क्या, क्या पोस्टुलेट्स थे, क्यों ये पोस्टुलेट्स दिए गए, क्या उनकी ऑब्जर्वेशन थी. तो देखो, उन्होंने ऑब्जर्व किए कुछ कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स. पहले मैं आपको कॉम्प्लेक्स बता दूं, तो कॉम्प्लेक्स ये थे. ये कुछ कॉम्प्लेक्स थे. अच्छा, आप कंफ्यूज मत होना कि अरे ऐसे लिखते हैं मेटल को और लिगेंड को और कुछ लिगेंड बाहर होते हैं. नो, दिस इज व्हाट विच इज एस्टैब्लिश्ड राइट नाउ. ओके, आफ्टर सच अ लॉन्ग जर्नी. वी आर टॉकिंग अबाउट 1893. तो उस टाइम बस ये पता था कि ये फॉर्मुलेशन है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं पता था. कैसा बॉन्डिंग है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ पता नहीं था. अब उन्होंने ये क्यों लिए, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये थी कि इनके मेटल सेम, इनके लिगेंड सेम, बट इनके कलर अलग थे. जैसे ये येलो था, ये पर्पल था, ये ग्रीन था और ये वायलेट था. तो कलर अलग अलग थे, इसीलिए उन्होंने इन सबको लिया और देखा कि इसका स्टडी करके कि ये क्यों ऐसा है, क्या इसमें ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से इनके सबके कलर. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, यहाँ पे इन दोनों के तो एम्पिरिकल फॉर्मूलाज भी सेम है, फिर भी कलर डिफरेंस है. समझ रहे हो. तो इसीलिए उन्होंने इन कुछ एग्जाम्पल्स को लेके स्टडी किया. अब देखो, अगर कलर डिफरेंस है, दैट मीन्स फॉर श्योर कहीं ना कहीं डिफरेंस है इन सब में, बॉन्डिंग में डिफरेंस है, रिएक्टिविटीज़ में डिफरेंस होगा. तो यही उनका एक ऑब्जर्वेशन था जिससे उन्होंने इसको स्टार्ट किया. अब उन्होंने क्या किया, देखने के लिए कि यहाँ पे कैसे बाइंडिंग हो रही है, उन्होंने इन सबको ट्रीट किया एक्सेस AgNO3 के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ. तो देखो, सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या होगा, बोलो. सिल्वर यहाँ पे क्या निकलेंगे, क्लोराइड आयंस निकलेंगे जो बाउंड नहीं होंगे, है ना, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर क्लोराइड बना देगा वहाँ पर. ठीक बात. तो कैसे किया, देखो, जैसे उन्होंने मान लो COCl3 6NH3 का ट्रीटमेंट किया AgNO3 के साथ, या वी कैन से Ag प्लस एक्सेस में डालेंगे तभी पता चलेगा ना. एक्सेस में डाला तो क्या मिला, देखो
यहाँ पे उनको 3 AgCl 3 मोल, अगर उन्होंने ये 1 मोल से स्टार्ट किया तो उनको ये 3 मोल क्या मिले, AgCl सॉलिड। ऑलराइट, यहाँ पे उनको 3 मोल मिले AgCl, यहाँ पे कितने मिले 2, यहाँ पे दोनों के केस में कितने मिले 1 मोल ऑफ AgCl। अब ऐसा क्यों हुआ और ऐसा होने से क्या हुआ? देखो, अब प्रेसिपिटेट आउट कौन होंगे? प्रेसिपिटेट तो वही होंगे जो क्या कर रहे हैं, बाइंड नहीं कर रहे हैं, जो जिनका कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है मेटल के साथ। तो देखो, तुम्हारा जो कोबाल्ट Cl3 6NH3 है, ठीक है, वो कितने दे रहा है 3Cl नेगेटिव। अगर 3Cl नेगेटिव यहाँ से बाहर चले गए तो ये क्या रह जाएगा, क्या रह गया होगा, कोबाल्ट NH3 6 और ऊपर क्या आ जाएगा +3। किसमें किसकी बात हो रही है, हम क्या डाल रहे हैं, एक्सेस Ag प्लस को। अगर COCl3 5NH3 है तो 2Cl नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा CONH3 5Cl + 2। अगर COCl3 4NH3 है तो 1Cl नेगेटिव CONH3 4Cl2 + 1। ये दोनों के लिए है, जो तुम्हारा ग्रीन था और वायलेट कलर का था, दोनों में सेम मिला, ठीक है। अब देखो क्या ऑब्जर्वेशन है, एक बात तो क्लियर हो रही है कि तीनों केसेस में कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। तो पहली उन्होंने ऑब्जर्वेशन ये बोली कि मेटल की क्या होगी, फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर होगी, जैसे कोबाल्ट के केस में क्या है 6। एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो, इन सब में ऑक्सीडेशन स्टेट देखो। अब ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको वैसे तो और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हम करेंगे, थोड़े जो कॉम्प्लेक्सेस थोड़े डिफिकल्ट हैं उनको, बट आई थिंक ये बहुत इजी हैं, आपको आते भी होंगे। जैसे कोबाल्ट जिसका निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट, उसको x मान लो, +6 लिगेंड, कैसे न्यूट्रल, चार्ज क्या 0 और कुछ नहीं है अंदर लिगेंड मेटल के साथ, तो ऊपर पूरे स्फीयर पे चार्ज क्या है 3, तो x क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ +3। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +3। सिमिलरली यहाँ पे देखो क्या आएगी +3, यहाँ पे देखो क्या आएगी +3। मतलब फिक्स्ड क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी है, जैसे कोबाल्ट की क्या है +3। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट क्या थी, उनकी ऑब्जर्वेशन थी। तो उन्होंने बोला कि कोई भी मेटल है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में, इट ऑलवेज ट्राई टू satisfy its coordination number and its oxidation state। तो उन्होंने इस कोऑर्डिनेशन नंबर को और ऑक्सीडेशन स्टेट को एक टर्मिनोलॉजी दे दी। ऑक्सीडेशन स्टेट को उन्होंने बोल दिया भाई ये है प्राइमरी वैलेंसी ऑफ मेटल, और इसको बोल दिया ये है सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ मेटल। तो पहला पॉस्टुलेट तो यही है कि मेटल ऑलवेज ट्राई टू सेटिस्फाई इट्स सेकेंडरी वैलेंसी, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, एंड इट्स प्राइमरी वैलेंसी, जैसे आप देख रहे हो। अब क्या बात हो गई, ठीक है, और क्या क्या बोला प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के लिए। तो पहली बात तो पता चल गई। सेकेंड बात बोल रहा है कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो है आयनाइजेबल, और या फिर इससे पहले तुम ये समझ लो, ज़्यादा इजी रहेगा, कि जो मेटल है, अच्छा पहला तो हो गया कि मेटल दोनों को सेटिस्फाई करता है, तो दूसरा है कि मेटल जो है अपनी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है विद द हेल्प ऑफ एनायनिक लिगेंड। प्राइमरी वैलेंसी बोलो तो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे सबके लिए क्या क्या कर रहा है, वो एनायनिक है, न्यूट्रल का तो कोई रोल ही नहीं है, 0 चार्ज है, तो उसके लिए सारा का सारा कंट्रीब्यूशन किसका हो रहा है, एनायनिक लिगेंड का हो रहा है। और दूसरा अपनी कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कौन कर रहा है, दोनों, एनायनिक लिगेंड भी और न्यूट्रल भी। देख सकते हो आप यहाँ पे न्यूट्रल है, न्यूट्रल एनायनिक दोनों है, न्यूट्रल एनायनिक दोनों है, दोनों ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 6 नंबर लाने के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर लाने के लिए। तो
तो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई एनायनिक लिगेंड ओनली, बट सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई एनायनिक एंड न्यूट्रल लिगेंड बोथ. थर्ड बोल रहा है कि जो प्राइमरी वैलेंसी है ऑक्सीडेशन स्टेट वो है आयनाइजेबल, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है कोऑर्डिनेशन नंबर वो है नॉन आयनाइजेबल. मतलब क्या हुआ? आयनाइजेबल का मतलब क्या हुआ? देखो, प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट आयनाइनिक लिगेंड के साथ, तो सारे के सारे क्या हो रहे हैं आपके? अलग हो रहे हैं ना, एनाइंस में बदल रहे हैं. जैसे यहाँ पे 3Cl नेगेटिव मिले, यहाँ 2Cl नेगेटिव मिले, यहाँ पे 1Cl नेगेटिव मिला, तो मतलब आयनाइजेबल है, आयन्स में चेंज हो रहा है. ठीक है, बट कोऑर्डिनेशन नंबर इज नॉन आयनाइजेबल. ऐसा तो नहीं है ना यहाँ पे कि तुम्हारा कोबाल्ट और तुम्हारा Cl नेगेटिव आयन अलग हो जाएगा और यहाँ पे कोबाल्ट +3 हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा. ये तो एंटिटी ऐसे ही इंटैक्ट रह रही है. कैसे पता चला अच्छा इंटैक्ट रह रही है? वो उनको पता चला बाय डूइंग कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट. कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट करने से क्या होगा? बोलो तो, कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट करने से क्या होगा? जो ये है पहला, आई होप सो आपको ये समझ में आ रहा है, काफ़ी हौच-पौच हो गया. तो जो पहला था, ठीक है, उसमें क्या रेशो होगी आयंस की? 1:3. 3Cl नेगेटिव और 1 ये पूरा एक आयन ही समझो, कैटायन. इसमें क्या रेशो होगी? 1:2. इसमें क्या रेशो होगी? 1:1. बस यहाँ से पता चला. तो कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? इसकी होगी. तो यहाँ से पता चला कि कितने नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो प्रेजेंट है. उसी के बेस पे उन्होंने बोला कि ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज द प्राइमरी वैलेंसी इट इज़ आयनाइजेबल एंड कोऑर्डिनेशन नंबर विच इज़ सेकेंडरी वैलेंसी इट इज़ नॉन आयनाइजेबल. अब यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम कर लें, जो 12th में इतना इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता था, भाई आना ही आना है, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन नंबर के बीच का डिफरेंस बताओ. तो दोनों ही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, दोनों की बॉन्डिंग एकदम एक जैसी है, बट डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? जैसे एक एग्जांपल दे दूँ तो जैसे हम पढ़ते थे ना, मोहर सॉल्ट, कार्नेलाइट, देन पोटाश एलम. जैसे मोहर सॉल्ट क्या होता था? FeSO4 NH4 टॉइस SO4.6H2, यही होता था ना मोहर सॉल्ट. तो डिफरेंस बस इतना है कि जैसे मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लो जो अभी किया ना, यही था ना पहला एग्जाम्पल. तो दोनों में डिफरेंस ऐसा है कि अगर इसको सॉल्वेंट में डालो तो इसके आयंस अलग अलग हो जाएंगे. Fe2+ अलग हो जाएगा, SO4 नेगेटिव अलग हो जाएगा. बट यहाँ पे क्या होगा? ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, इसकी बात कर रही हूँ, कोऑर्डिनेशन, ये तो ऐसा नहीं होगा कोबाल्ट +3 अलग हो जाएगा, अमोनिया अलग हो जाएगा. सो द ओनली डिफरेंस इज दैट डबल सॉल्ट loses its identity in solvent because it is ionizable, it converts to ions in solvent, but coordination complex, it do not loses its identity in solvent, it do not converts to the ions. So this was the difference between the both. All right, so now the fourth point of Werner's theory says that the oxidation state which is our primary valency is non-directional. And coordination number which is our secondary valency is डायरेक्शनल इन नेचर. अब इसका क्या मतलब हुआ नॉन डायरेक्शनल एंड डायरेक्शनल? देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट से आपको ऐसा नहीं पता चलेगा कि मेटल के अराउंड जो सब्स्टिट्यूएंट हैं, जो लिगेंड हैं, उनकी क्या पोजीशन है स्पेस में. बट कोऑर्डिनेशन नंबर से हम आइडिया लगा सकते हैं कि क्या उनकी पोजीशन है. कैसे? जैसे कोबाल्ट का स्टडी किया, क्या बोला? फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 6. तो 6 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम देखें क्या क्या हो सकती है ज्योमेट्रीज. अब देखो, अगर 6 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो देखो मैं ऐसे लगा रही हूँ कि मेरे पास मान लो ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स है, Ma5 है और B, मतलब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है और 2 तरह के लिगेंड हैं. तो कैसा कैसा ज्योमेट्री हो सकता है? देखो, एक तो हो सकता है प्लेनर में क्या होगा कि जैसे मतलब मान लो ये प्लेन जो बोर्ड का है, इसी के ऊपर ऐसे बीच में मेटल है, यहाँ पर ऐसे 6 लिगेंड हैं.
6 लिगेंड में एक बी है, बाकी सब एक जैसे हैं ए। पर ध्यान रखना ये पूरा एक ही प्लेन है, तो इसको बोल दिया हमने प्लेनर ज्योमेट्री। और कैसे कैसे अरेंज कर सकते हो तुम इन तीनों को? एक ऐसे अरेंज कर सकते हैं ना, देखो मतलब मेटल बीच में हो और 3 जो लिगेंड हैं वो ऐसे हो और 3 लिगेंड ऐसे हों। ये सब के सब लिगेंड अटैच हों मेटल के साथ, कुछ ऐसे। ये समझ में आ रहा है? ये एक ऐसा है कि एक ट्रायंगल ऊपर एक ट्रायंगल नीचे और दोनों ट्रायंगल एकदम एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहा है? सुपर इम्पोज। इसको तुम क्या बोलते हो? ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक, है ना? एंटी प्रिज्मेटिक हो जाता है जिसमें दोनों आपस में एंटी होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, ठीक है? तो इसमें भी ऐसे कुछ हो सकता है। लेट्स से एक जो पोजीशन है वो ऐसी है, यहाँ पे बी है, बाकी जगह जो है वो ए है, ऐसा कुछ होगा, ठीक है? अच्छा, एक और हो सकता है, क्या हो सकता है? वो तो बहुत ही ज़्यादा वेल नोन है, ऐसे जहाँ पे ये एक प्लेन है और एक अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है। समझ में आ रहा है? ये जो जैसे हाथ है, यहाँ पे तुम्हारा मेटल और 4 लिगेंड है, एक लिगेंड ऊपर है, एक लिगेंड नीचे है। इसको तुम क्या बोल देते हो? ऑक्टाहेड्रल, राइट? तो कुछ भी लगा लो, बी मान लो यहाँ पे, और बाकी सब ए है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज लग रही है हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। अब अच्छा एक बात देखो ध्यान से, ये अरेंजमेंट बी को चाहे मैं चेंज कर लूँ और सेम ही रहेगा। तो यहाँ से बात हम कर लें आइसोमर्स की कि कितना मतलब और कैसे कैसे हो सकता है। तो इसका अगर देखो तो एक ही आइसोमर रहेगा ना, उसको रोटेट करके देख लो, सेम ही बात है। यहाँ पे बी है तो उसको रोटेट करके देख लो, सेम ही आएगा, एक ही आएगा। यहाँ पे भी सेम आएगा, ठीक है? चाहे वो यहाँ हो चाहे वो यहाँ हो। देखो ध्यान से देखो, अगर बी यहाँ हुआ है ना, तो आप उसको रोटेट करके देखो, आप सेम ऐसा लेके आ सकते हो, बिकॉज दिस इज लाइक अ स्फेरिकल, दिस इज लाइक स्फीयर, राइट? तो ये भी आपका क्या होगा? एक होगा, तो एक आइसोमर मिलेगा, ठीक है? तो इस केस में मतलब ये क्या थी? हिट एंड ट्रायल प्रोबेबिलिटी थी कि एक मिलेगा, एक मिलेगा, एक मिलेगा। तो एक्सपेरिमेंटली वर्नर को भी क्या मिला? एक ही आइसोमर मिला। पर यहाँ से कुछ कह नहीं सकते क्योंकि सब में ही एक है। तो उन्होंने और देखा और एक्सप्लोर किया। तो Ma5B की जगह कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए उन्होंने स्टडी किया Ma4B2। देखिए इसको कैसे करेंगे, ठीक है? चलो देखते हैं। Ma4B2 है तो सेम चलते हैं। पहले प्लेनर स्ट्रक्चर देखें तो प्लेनर में क्या होगा? प्लेनर में कैसे लेंगे? अगर ये बी है तो सब एक ही प्लेन में है। देखो 2 हैं, अब 2 तरह के लिगेंड है और उसमें भी जो, अब देखो इसमें क्या करो ना, जो तुम्हारा ये बी है उसको तुम फिक्स कर लो। ये 2 हैं, एक को फिक्स कर लो। जैसे ये बी मैंने यहाँ पे एक फिक्स कर लिया, तो लेट अस से दूसरा यहाँ पे है, बाकी सब क्या है? ए है। अब इनको पोजीशन नाम दे लें, 1 2 3 4 5 6। क्या क्या हो सकते हैं? अगर इसको फिक्स रखा जाए, इसको चेंज किया जाए तो 1 2, इसको यहाँ ले आओ 1 3, इसको यहाँ ले आओ बी को 1 4, इसको यहाँ ले आओ, क्या बन गया? दोबारा से सेम आ जाएगा। इसको यहाँ पे ले आए तो सेम आ जाएगा ना हमारा 1 3 जैसा। तो टोटल कितने हो गए? 3 आइसोमर्स हो गए, ठीक है? समझ आ गया? 3 आइसोमर हो गए तुम्हारे, किसके लिए? प्लेनर के लिए। अब अगर ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक की बात करें, देखो समझना ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक को थोड़ा ध्यान से। अच्छा, ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक के लिए आइसोमर्स, देखो आइसोमर हम करेंगे, सारी ज्योमेट्रीज के आइसोमर्स करेंगे क्योंकि आइसोमर्स से क्वेश्चन आता है हर एक पेपर में। तो उसको मैं डिफरेंट वीडियो में हम उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। बट
इस प्रोसेस को समझने के लिए, इन पॉइंट को समझने के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी दिस ऑल्सो। तो ट्राई करते हैं कि जो उन्होंने एग्जाम्पल्स लिए वो हम अभी समझ पाएँ। तो दिस वॉज ईजी, राइट? ओके, नाउ ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक के आइसोमर्स ऐसे 3 डायमेंशन में सोचना और समझना, उसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो थोड़ा ऐसे करते हैं, देखो ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक को क्या मैं ऐसे दिखा दूँ कि एक ट्रायंगल ऐसे है और दूसरी ऐसे है, ऐसे देख लें। जिसमें मान लो कि ये जो जिसको मैं डार्क कर रही हूँ ये ऊपर है और जो लाइट है वो आपकी नीचे है, ये ऊपर है और ये नीचे है, ठीक है। अब देखो एक को फिक्स कर लेना है, जैसे मैंने ऊपर जो है ये यहाँ पे मैंने बी को फिक्स कर लिया यहाँ पर, तो एक क्या हो सकता है कि उसी सेम ही प्लेन में, ऊपर वाली ही प्लेन में आपका दूसरा बी हो, बाकी सब ए रह गए, मैं लिख नहीं रही हूँ, ऐसा हो सकता है, ठीक है। या फिर क्या हो, या फिर क्या हो, एक को फिक्स किया था हमने, है ना, इसको तो फिक्स कर लिया था। अब और क्या हो सकता है कि जो बी है लिगेंड वो यहाँ हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एक ये तरह का हो गया, एक ये तरह का हो गया, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? हो सकती है कोई ये यहाँ पे सेम में हो गया, ये यहाँ पे हो गया, एक हो सकती है एक यहाँ हो और एक ऊपर हो, एक नीचे और एक ऊपर हो। तो कैसे दिखाएंगे? जैसे मतलब ये है नीचे वाला प्लेन और ये है ऊपर वाला प्लेन। आप ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक को बस क्या कर रहे हो, ऊपर से देख रहे हो, या जो मैंने ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक ऐसे ड्रॉ किया था आपने उसको रोटेट करके अपनी तरफ ऐसे कर लिया, अब आप उसको देख रहे हो। तो ये है, अब हमने फिक्स इस पोजीशन को तो कर ही लिया था, ये हमारी फिक्स पोजीशन है तीनों में, बाकी को हम चेंज करके देख रहे हैं। सेम प्लेन में हो गया, ठीक है, नंबरिंग करनी है, नंबरिंग करके देख लो, जैसे ऊपर किया, ये हो गया एक, दूसरा ऐसे हो गया, तीसरा क्या होगा, अगर ये यहाँ पर है तो ये कहाँ होगा, यहाँ पर। तो कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स हैं पॉसिबल? 3 आइसोमर्स। तो 3 आइसोमर पॉसिबल हैं अगर ये हुआ, 3 आइसोमर पॉसिबल हैं अगर ये हुआ। लास्ट रह गया ऑक्टाहेड्रल, बहुत इजी है। ऑक्टाहेड्रल में तो कैसे होगा, M ऐसे था, ये एक प्लेन है, ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन। मान लो दोनों जो B हैं वो एंटी हैं, एक दूसरे के ट्रांस हैं, एक ऐसा हो सकता है ना, ट्रांस बोलते हो इसको तुम, या एक क्या हो सकता है, वो सिस हो, मतलब क्या बोले, यहाँ पे बी हो और दूसरा भी यहाँ पे हो, क्या हो गया आपस में, सिस। एक अबव द प्लेन और एक कहाँ पे हो गया, आपका जो प्लेन है वहाँ पर, तो इसको क्या बोल दिया, सिस। तो कितने आइसोमर हो गए, 2। अच्छा, इसको जहाँ पे बी एक ऊपर है एक नीचे है, रोटेट करके देख लोगे तो भी क्या होगा, सेम ही होगा। यहाँ पर भी सेम ही होगा, चाहे तुम इसको रोटेट करके देख लो, बिकॉज ये तो तुमने फिक्स कर दिया ना ऊपर। अब ये चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, सेम ही बात है। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने हो गए, 2। और एक्सपेरिमेंटली जो वर्नर को मिला कोबाल्ट के केस में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जहाँ पे फिक्स है, उनको एक्सपेरिमेंटली मिले 2 आइसोमर। तो पता चल गया ना, कोऑर्डिनेशन नंबर से क्या पता चल गया, कोऑर्डिनेशन नंबर से पता चल गया कि उसकी क्या ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल, और वहाँ से हमें पता चला अबाउट द आइसोमर्स ऑल्सो। Getting the point? So that is why the coordination number is directional in nature, but oxidation state is non-directional in nature. अगर ये कुछ ये ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ये हम दोबारा रिपीट करेंगे आइसोमर्स जब पढ़ेंगे, या ग्रुप थ्योरी जब हम पढ़ेंगे तब एनालिसिस करना सीखेंगे कि 3 डायमेंशन में कैसे आपको सोचना है, क्योंकि ये तो कुछ भी एग्जांपल्स नहीं है, वहाँ पे आपको और भी टीडियस एग्जांपल्स होंगे जो आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ कहाँ पे प्लेन लग रहा है, क्या सिमेट्री है, कैसे होगा, तो वो हम वहाँ पे भी सीखेंगे। So this is all about of the basic of your coordination chemistry. Now I have 2 announcements to make here. So the first announcement was for the student who are preparing for having their degree in Germany. Okay. So why in Germany? Because this scholarship that I am going to talk about, this is basically a scholarship which is given to the student of PhD or for any internship in Germany only.
in some institute of Germany. Okay, so the name of the scholarship is DAAD, DAAD. This is basically a German academic exchange service. ठीक है, ये जो है इसमें आपको अप्लाई करना होता है फॉर द स्कॉलरशिप. ओके, सेम जैसे मतलब यहाँ पे हमारा CSIR राइट आपका इंस्पायर ये सब जैसे फंडिंग करता है PhD स्टूडेंट को, वैसे ही जर्मनी में PhD कर रहे स्टूडेंट को वो भी इंडिया के जो भी या और कंट्रीज़ के जो भी हैं उनको ये स्पॉन्सर करता है. तो इस पैंडमिक में जहाँ पे एवरीबडी इज़ वेरी मच कन्फ्यूज्ड अबाउट व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर एंड हाउ, लाइक जितने भी लोगों ने सोचा होगा कि उनको इंडिया से नहीं, उनको नहीं करना है PhD, बाहर से करना है PhD, तो उन इंस्टीट्यूट के लिए तो दे आर वेरी कन्फ्यूज राइट कि क्या क्या होगा, कैसे एप्लीकेशन प्रोसीजर होगा, वो लेंगे भी या नहीं. सो दिस DAAD इज़ बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग एन ऑनलाइन वेब बेस्ड वी कैन से Q&A, question and answer session, where they will be talking about the eligibility, about the last date of applying, and about complete procedure they are going to talk about. So this is my suggestion for you guys who are preparing, who are thinking about this thing. So there is a link in the description box from where you can go to their website and you can register over there for this webinar, we can say that, and it will be on 11 August, and the timing is 4 PM to 5 PM. So get ready with your questions and go and ask them questions. So, and if some of you who don't know about DAAD and about this scholarship, you do your homework, go to the website, find out about this. If you have any idea, if you are thinking about getting your PhD not from India, okay, so this is a very good platform where you can apply. So, and this is a very good opportunity for you guys. So then you can ask any question, whatever you have the queries about this. So this was the first announcement. The second announcement is for those who are preparing for GATE 2021. So I think most of you guys are already, I think, got the news, I think. So the news is about your GATE exam 2021. So the news is that the date of exam is already there on the website in February. So you can go there, you can check the dates of the exams, right? And the important change that had been done is, the first change is that this exam now can the eligibility is changed right now. So the student who are in BSc final year, ओके, और इन मास्टर्स, वो भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं अभी गेट का जो 2021 में और आगे भी, बिकॉज IIT बॉम्बे हु इज़ ऑर्गेनाइजिंग गेट 2021 दे हैव चेंज सर्टेन रूल्स रिगार्डिंग गेट एग्ज़ाम. तो तुम में से जो भी BSc फाइनल ईयर में हो, इंजीनियरिंग में भी और साइंस में भी, जो भी अपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री के फाइनल ईयर में, थर्ड ईयर या उससे ऊपर है, तो वो सब एग्ज़ाम ये दे सकते हैं. So this is a good news for BSc final year student and to the MSc student, right? So this is the news. The second thing is that there are changes in the syllabus of chemistry and other subjects also. So one thing I want to make clear over here is that there is nothing to worry about syllabus, all right? Whatever is changes given on the syllabus, so there is a link in the description box, you can go and check it out, the syllabus which is changed right now. So the words, the alphabets who are in blue in color, they are the changed one, the revised one topic. So it is nothing to worry about, because whatever is there, for example, I am teaching coordination chemistry right now. Now the topic who are highlighted over there, who are revised now, are Tanabe-Sugano diagram and your metal multiple bond, then metal multiple bond. So whatever is there, it is not like कि अगर वो नहीं डालते तो तुम नहीं पढ़ते, कि तुम सिर्फ CSIR के सिलेबस में ऑरेगल और TS डायग्राम में तो बस उसी के लिए पढ़ोगे और गेट में देख के भी नहीं जाओगे, ऐसा तो नहीं होता है ना. तो जैसे मैंने तुमको पहले ही बोला कि देयर इज़ अ वेरी फाइन सिलेबस दैट यू यूज टू, और सिलेबस का कुछ है ही नहीं. वट एवर यू हैड डन इन योर मास्टर्स एंड बैचलर्स, दैट इज ऑल इज सपोज टू कम इन योर एग्जाम. ओके, सो राइट नाउ इन दिस टाइम दे जस्ट हाईलाइटेड दोज थिंग्स ऑल्सो विच वर नॉट देयर earlier in that syllabus. So all those things we are going to do. There is one more topic which was I think
the Ray Dutt and Beller twist. That is the new thing, I think. So that we will add, of course, but whatever is else in this particular chapter, it is already there, and we were already supposed to do those things. And in the other units also the syllabus is being added, but yeah, of course, like for example, in the quantum chemistry we have operator, which is revised now, application of 1D 2D 3D box, so that is already, so ये तो तुम पहले भी करके जाने वाले थे, तो ऐसे घबराना नहीं है कि अरे सिलेबस बढ़ा दिया, बड़ा बड़ा दिख रहा है पूरा टॉपिक, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट. But yeah, the competition is going to be tough because these guys, BSc and MSc student, are going to give you a very tough competition. So but of course we have to work hard to achieve anything in your life. So this is all about your first lecture. I'll come back with the second lecture soon. Till then, stay safe and work hard. Thank you.